Friends, it's me, Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today we will discuss the application of the trigonometry. First of all, I will explain the types of the trigonometry. What are the types? A few types we have: scalar triangle. In scalar triangle, three different sides and three different angles. For example, let's suppose you can see that all the sides with different length and all the angles are not same. So such type of the triangle is called the scalene triangle. A scalene triangle. The next one, isosceles triangle. It is a triangle whose two sides are same. When two same side and two same angle. This type of the triangle is called isosceles triangle. For example, let's suppose this side and this side same, side 1 or side A, side B, both are same, and this angle or this angle alpha equal to beta, these two angles are same. A triangle with two same side and two same angle is called isosceles triangle. The next one, equilateral triangle. This triangle is very important, and one of the MCQs is given in FAST University. The statement of the question: when all sides and angle are same, then the name of the triangle: option A, scalene; option B, isosceles; option C, equilateral; option D, right. Okay, the equilateral triangle are one of the triangle in which all three sides are same and all three angles are same. For example, let's suppose this is a triangle 60 degree, 60 degree, 60 degree with A, B, C. All the sides are same, that is A equal to B equal to C, and you can see all the angles are same. Next, the right triangle. One of the angle in right triangle is 90 degree and the remaining two angles less than 90 degree. You can say that acute angle. One of the angle is 90 degree and the remaining angles less than 90 degree. Okay. The next one is acute angle. It is a triangle, all three angles less than 90 degree. So it means equilateral triangle. Can also say that acute triangle because all three angles less than 90 degree. So when all the angles in triangle less than 90 degree, that triangle is called acute triangle, obtuse triangle. What is the meaning of obtuse? It is an angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree. One angle should be greater than 90 degree and less than 180 degree. So such type of the triangle is called obtuse triangle. If an angle less than 90, greater than 90 degree and less than 180 degree, then such type of the triangle is called the obtuse triangle. Now student, I want to find out the solution of a triangle. In this chapter, you study solution of the triangle. What is mean by the solution of the triangle? You have to find three sides and three angles. Case 1. When there is a right triangle. Okay. When you have right triangle, then you have two cases. One side and one angle is given. The second one, case 2, two sides are given. Then you can use Pythagoras law. That is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So you can also solve this, and also you can use
Remember, student, whenever there is a right triangle, then you use Pythagoras law. If you have not right triangle, then you cannot use Pythagoras law. Okay, if there is an oblique triangle, a triangle in which none of the angle 90 degree is called oblique triangle. So देखें स्टूडेंट, जब आपके पास ओब्लिक ट्राइंगल होगी तब आपने ये पाइथागोरस लॉ इस्तेमाल नहीं करना, तब आपके पास स्पेसिफिक लॉज होंगे जो कि मैं आपको बताता हूं। और इसके साथ मैं ये राइट ट्राइंगल के लिए कुछ रूल इस्तेमाल कर लेता हूं। लेट्स सपोज देयर इज अ सन whose shadows a pole of 8 meter, whose shadows 8 meter on the ground. Then what is the angle? If there is a pole of 8 meter height and here is the sun, then the shadow of this pole is 8 meter. Then what will be the angle? Theta. Okay, you can see here, as I told you in my previous lecture in chapter number 9, that is tan theta is equal to perpendicular over base. What is perpendicular? 8. What is base? 8. It means theta is equal to tan inverse 1. So as you know, tan at 1 is pi by 4. So this is right triangle basically. So one of the example I have taken for the right triangle. Now oblique triangle. Solution for oblique triangle. As I told you the definition of the oblique triangle, एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो सॉल्यूशन होता है जी, वह लॉ ऑफ साइन। व्हाट इज लॉ ऑफ साइन? A over sin alpha, B over sin beta, and C over sin gamma. And remember, whatever the type of the triangle, remember sum of all the angles of interior angle of a triangle is 180 degree. तो ये ला आपने हर ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल कर लेना है उसके सॉल्यूशन के लिए। जो मर्जी टाइप्स है ट्राइंगल की, लेकिन जो भी उसका इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो चाहे वो ओब्लिक ट्राइंगल है, चाहे वो स्केलन ट्राइंगल है, चाहे वो सोसियलिस ट्राइंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चाहे वो राइट ट्राइंगल है, एक्यूट, obtuse, whatever the type of the triangle, this law will remain same for all type of this triangle. Okay, law of sine. In law of sine, in the case 1, you can say that one side and one angle given. Or you can say that two angle given. Then you can use law of sine. For example, A equal to 1 by 2 and alpha is equal to 30 degree or pi by 6, beta is equal to pi by 3. Then you have to find B, one question, you have to find C, another question, you have to find gamma. The 3 questions you can solve using this. If you want to find out gamma, then you will use this result. And if you want to find B or C, if you want to find B, you will consider A and B.
और अगर आपने सी मालूम करना है तो फिर ए और सी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू गिवन है, लेंथ ऑफ ए इज गिवन टू मी, तो ये लाजमी कंसीडर करेंगे। ओके, द नेक्स्ट केस 2, when there is a triangle, okay, A with the vertices ABC, with the side ABC, with the angle alpha beta gamma, two sides and including angle given, तो दो साइड और उनके दरमियानी एंगल गिवन होगा। फॉर एग्जांपल, इफ पर्सन B1 C2 अल्फा 5/4, तो आप देख सकते हैं बी और सी के दरमियानी जाविया एंगल कौन सा है, अल्फा। ए और सी के दरमियान इंक्लूडिंग एंगल कौन सा है, बीटा। ए और बी के दरमियान इंक्लूडिंग एंगल क्या है, गैमा। तब ये आपने केस यूज करना है, और यहाँ पे आपके पास आएगा लॉ ऑफ कोसाइन। व्हाट इज लॉ ऑफ कोसाइन? a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos अल्फा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसको cos अल्फा, साइड को उठा के इधर ले जाएं, a स्क्वायर को इधर ले आए, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। इसी तरह जी cos बीटा, मैं अब डायरेक्ट लिखने लगा हूँ cos बीटा को, दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। और इसी तरह आपके पास आएगा जी cos गैमा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो ये आपके पास cos गैमा आ गया। ये ला भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए, केस 2 के लिए, और लॉ ऑफ टेंजेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है जी। लॉ ऑफ टेंजेंट क्या है जी? What is law of tangent? Law of tangent, if there is a a minus b over a plus b, it can be written as tan alpha minus beta by 2 tan alpha plus beta by 2। तो ये साइड a और b के लिए a माइनस बी है तो अल्फा माइनस बीटा करेंगे, b माइनस a है तो बीटा माइनस अल्फा करेंगे। अगर a माइनस बी नीचे है डिनोमिनेटर में, a प्लस बी ऊपर डिनोमिनेटर में है, तो प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे। अभी आप देखें, अगर मैं b माइनस ए लिखूं तो इसका मतलब क्या है, बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 और टेन, और नीचे इसी का प्लस आ जाएगा, और नीचे इधर भी प्लस सी लिख देंगे आप, तो टेन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह आप ए और सी के दरमियान रिलेशन कायम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, द थर्ड केस which I am going to express, case 3, when all three sides are given, जब आपको तीनों साइड्स गिवन होगी तो फिर आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, अल्फा, बीटा या गैमा। जब आपके पास तीनों साइड गिवन है तो फिर आप देखिए ये आपके पास है जी, तो मेथडोलॉजी इसकी क्या होगी, सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन, और लॉ ऑफ कोसाइन की कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है आपने, दिस वन एंड दिस वन। तो अगर आपने अल्फा निकालना है तो cos अल्फा इस्तेमाल करें, अगर आपने बीटा निकालना है तो cos बीटा निकालें, अगर आपने गैमा निकालना है तो आप cos गैमा इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, और वो क्या है, मजीद भी मैं आपको मेथड बताता हूँ इसके। इफ द साइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, ग्रेटेस्ट एंगल, ये भी पूछा जा सकता है जी। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट एंगल का पूछें
तो आप देखिए स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइड, ए, दैट इज 3। तो ए से कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो होगा अल्फा। क्या होगा जी, अल्फा। तो आपने फिर कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ये वाली कॉस अल्फा। और अगर आपसे ग्रेटेस्ट एंगल पूछा जाता है तो आप देखें कौन सी ग्रेटेस्ट साइड है जी, सी। तो आपने क्या मालूम करना है जी, गैमा। तो अब आप देखें तीनों में से कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉस गैमा। तो जो सबसे छोटी साइड है वो स्मॉलेस्ट एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग, जो सबसे बड़ी साइड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेटेस्ट एंगल आप इस्तेमाल करेंगे। नाउ another method to find out the angle, half angle formulas. What is sin alpha by 2? It is s minus b, s minus c over bc. And now sin beta by 2, s minus a, s minus c over ac. Sin gamma by 2, s minus a, s minus b over ab. तो इन सब के ऊपर जी स्क्वायर रूट लगाना है आपने। Where s, what is s? s is basically a plus b plus c by 2. ये जो सम ऑफ ऑल थ्री साइड, हाफ पेरीमीटर इसको बोलते हैं। अगर मैं आपको तीन साइड्स दे दूं ट्रायंगल की, तो मैं कहूं जी हाफ पेरीमीटर निकालें, तो हाफ पेरीमीटर का क्या मतलब है, आप तीनों साइड्स को सम करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हाफ पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, साइन तो मैंने आपको लिख दिया स्टूडेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉसिक अल्फा बाय 2। तो कॉसिक में क्या हो जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा और s माइनस बी, s माइनस सी नीचे आ जाएगा। इसी तरह कॉसिक बीटा बाय 2 में AC ऊपर, s माइनस सी, s माइनस सी नीचे। कॉसिक गैमा बाय 2 में AB ऊपर, s माइनस सी, s माइनस बी नीचे आ जाएगा आपके पास। और इसी तरह आप देखें, आप कॉस अल्फा बाय 2 s इंटू एस माइनस ए divided by BC. So s into s minus a over BC. The next one is cos beta by 2 s into s minus b divided by AC, and cos gamma by 2 s minus c divided by AB. Okay, what is the reciprocal of cos? That is secant. So secant alpha by 2 will become BC over s into s minus a. So this is what secant alpha by 2, and for secant beta by 2 take the reciprocal of this term. Okay, for secant gamma by 2 take the reciprocal of this term. You will get secant beta by 2 and secant gamma by 2. The next result is basically tan alpha by 2. So tan alpha by 2 you can conclude from sin alpha by 2 and cos alpha by 2. आप इन दोनों की रेशियो लें, आप देखें यहाँ पे भी BC है, यहाँ पे भी BC है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा that will be s minus b, s minus c divided by s into s minus a. तो ये आपके पास tan alpha by 2 हो गया। नेक्स्ट आपके पास tan beta by 2। तो इसमें आपने क्या करना है, साइन बीटा बाय 2 और कॉस बीटा बाय 2 को करना है। तो देखिए ये आपके पास होगा s माइनस ए, s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस बी। ओके, द नेक्स्ट वन इज टेन गैमा बाय 2, s माइनस बी, s माइनस गैमा है तो a आ जाएगा इंटू s माइनस सी। तो ये आपके पास, अब इसका कोरिस्पॉन्डिंग देखें स्टूडेंट, ये मतलब जो पॉसिबिलिटीज हाफ एंगल फार्मूला थे। एक और बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं, आपने हाफ एंगल चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़े हैं। तो ये जो हाफ एंगल है ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू साइड है। आप देखें
सब हाफ एंगल में एस इस्तेमाल हो रहा है। और चैप्टर नंबर 10 में जो आपने हाफ एंगल पढ़ा था, लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, कोई एक बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज के आपने पढ़ा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी हो गई। इसमें हाफ देखें, डबल देखें या ट्रिपल देखें, कहीं भी एस इन्वॉल्व नहीं होगा। इसी तरह आप cos 2 थीटा देखें, दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आप हाफ एंगल निकाल लें इसका, दैट इज cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जैसे ही आप स्क्वायर खत्म करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब आप देखें, ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल आप कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें ये हाफ एंगल फार्मूले विद रिस्पेक्ट टू साइड है, दैट इज एस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओके, नेक्स्ट आप देखें, अगर आपने एंगल फाइंड आउट करना है तो आप इन तमाम फार्मूलों से भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इफ ऑल द 3 साइड्स आर गिवन टू यू तो ये लॉ ऑफ कोसाइन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसी तरह अगर मैं ये टेन गामा बाय 2 की जगह कॉट गामा बाय 2 निकालना चाहूँ तो स्टूडेंट, अब आपको पता है कि कॉट और टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपने क्या करना है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, दैट इज एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। तो इसी तरह अगर आप कॉट बीटा बाय 2 निकालना चाहते हैं तब भी आप निकाल सकते हैं, कॉट अल्फा बाय 2 निकालना चाहते हैं तब भी आप इसका रेसिप्रोकल टर्म ले लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, केस 1, 2 साइड and including angle given, then area will be 1 by 2 AB sin gamma or 1 by 2 BC sin alpha or 1 by 2 AC sin beta. Question, if A equal to 7, B equal to 3 and gamma is equal to pi by 3, then what is the area of the triangle? So area of triangle, आप देखें कौन से केस में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ए बी gamma। तो आप पहले ही केस मैंने कंसीडर कर लिया है, इसमें वैल्यू पुट कर दें, 7 मल्टीप्लाई 3 इंटू साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 बाई 2 होता है, 1 बाई 2 इंटू 21 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाई 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, जो भी आंसर आएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, केस 2, व्हाट इज केस 2? When 2 angles and one side given, then area will be a square 2 sin alpha sin beta sin gamma, b square 2 sin beta sin alpha sin gamma, c square 2 sin gamma sin बीटा sin अल्फा। तो इससे रिलेटेड भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि केस ऐसे ही हो, मैं आपको एरिया दे देता हूं, लेट्स सपोज 121 मीटर स्क्वायर, और 2 एंगल दे देता हूं, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3, beta is equal to pi by 4. Then what is the value of A? What is the value of B? What is the value of C? तो आप देखें, अल्फा बीटा आपको गिवन है, गैमा आप निकाल सकते हैं।
किससे गैमा निकालेंगे जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब आपने गैमा निकाल लिया तो फिर अगर ए पूछूं तो ये रिलेशन इस्तेमाल करें, बी पूछूं तो ये रिलेशन इस्तेमाल करें, सी पूछूं तो ये रिलेशन इस्तेमाल करें। तो इन शॉर्ट ये कि जरूरी नहीं है कि सिंपल सिंपल आपके पास आ जाए। इसी तरह इसमें भी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एरिया दे देता हूँ, तो इन तीन में से कोई सी दो क्वांटिटीज दे देता हूँ, तो थर्ड क्वांटिटी आपसे पूछ लेता हूँ, यानी कि टोटल आपके पास चार क्वांटिटीज है, 1 2 3 4, 4 अननोन टर्म्स है, इनमें से कोई भी तीन मैं आपको दे के चौथी पूछ सकता हूँ। तो ये मत ज़हन में रखिएगा कि बस सिंपल ही क्वेश्चन आ सकता है कि दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल आ गया तो चलो हम इसको अप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, all three sides given. Then we will use hero formula, that is s into s minus a, s minus b, s minus c, where s is equal to a plus b plus c divided by 2. That's what a equal to 3, b equal to 4, c equal to 5, and what is the area? तो आप स्टूडेंट इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सब का सम लें, 2 पे डिवाइड करें, ऐसा आ जाएगा, फिर आप एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ए बी सी की वैल्यू भी पुट कर दें, आपके पास एरिया आ जाएगा। और इस रिजल्ट को हम कहते हैं दैट इज हीरो फॉर्मूला। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कम सर्कल। तो ये हमारे पास कुछ सर्कल की टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, आप देख भी सकते हैं कि ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है ये सर्कल को टच कर रहे हैं, या सर्कल उनके वर्टिसेस को टच करके जा रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है, सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो जब ऐसा आपके पास सर्कल आ जाएगा तो उसका जो रेडियस होगा ये सर्कम रेडियस कहलाएगा, दैट इज आर, इसका नाम है जी सर्कम रेडियस। ये आपके पास क्या है जी, सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस की जो आपके पास इक्वेशन होती है वो एक ये है आपके पास, r इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा, फिर r इज इक्वल टू a ओवर 2 साइन अल्फा, b ओवर 2 साइन बीटा, c ओवर 2 साइन गामा। ये सारा आपके पास सर्कम रेडियस के बराबर है। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ आपने कैपिटल R के तौर पे इसको याद नहीं रखना, आपने इसको सर्कम रेडियस के तौर पे याद रखना है। तो अब आप देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, इन सर्कल। तो इन सर्कल क्या है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बना और उस सर्कल ने ट्रायंगल की तीनों साइड को टच किया, तो ये आपके पास सर्कल कहलाएगा इन सर्कल। और इसका जो आपके पास रेडियस होगा स्मॉल r से इंडिकेट किया जाता है, और इसको बोलते हैं इन रेडियस। तो कोई अगर आपसे इन रेडियस पूछ ले तो वो स्मॉल r, सर्कल रेडियस पूछ ले वो कैपिटल R। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्क्राइब्ड सर्कल, इसको ई सर्कल भी बोलते हैं, दैट इज ई सर्कल। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये ट्राइंगल है आपके पास स्टूडेंट, तो ये तीन साइड आपके पास, 1 2 3। अगर मैं ये साइड लेता हूं ए, तो ये जो आपके पास यहां से लेके यहां तक रेडियस बनेगा, ये R1 हो गया, और इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं डेल्टा ओवर एस माइनस ए से। अब ये साइड है आपके पास B, तो यहां से लेके यहां तक आपके पास जो रेडियस होगा डेट इज R2, तो ये होगा डेल्टा ओवर एस माइनस B। अगर ये आपके पास साइड C है तो ये आपके पास हो जाएगा जी R3 डेल्टा ओवर एस माइनस C। तो इसमें क्या होता है, एक साइड जो है ट्राइंगल की वो एक्सटर्नली सर्कल को टच करती है और बाकी दो प्रोड्यूस हो रही होती है। सर्कल टच वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड अदर टू प्रोड्यूस साइड। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ए साइड के लिहाज से जो आपके पास रेडियस बनता है ई रेडियस कहलाता है, एस्क्राइब्ड रेडियस कहलाता है। इट इज एस्क्राइब्ड रेडियस विद रिस्पेक्ट टू साइड ए, इट इज एस्क्राइब्ड रेडियस विद रिस्पेक्ट टू साइड बी, इट इज एस्क्राइब्ड रेडियस विद रिस्पेक्ट टू साइड सी। तो ये आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसे रिलेटेड, R1 R2 इनका जो मतलब प्रोडक्ट्स का सम है वो s स्क्वायर के बराबर,
तमाम जो आपके पास इन रेडियस और एस्क्राइब रेडियस का प्रोडक्ट है वो डेल्टा डेल स्क्वायर के बराबर है. व्हाट इज डेल स्क्वायर? एज आई टोल्ड यू, इट इज बेसिकली nothing. Hero formula, you use it in area. S minus A, S minus B, S minus C. So that is a del. That is area. I will take the square. Square root will be eliminated. So this is the del square. Okay. The next one. Product of these three R's. R square barabar equal. Then sum of all ascribed radius minus in radius equal to 4r. 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 is equal to 1 over r. Okay, there is a ratio for the equilateral triangle. So question can be asked like this. What is ratio? Circumradius to ascribed radius. तो स्टूडेंट देखें आपके पास ये दो है, क्योंकि ascribed radius में R1, R2, R3 ये सब तीन के इक्वल है, तो इसलिए इसी की साइड के लिहाज से भी पूछा जा सकता है. तो R1 बेसिकली 2, 3. तो अब इसको मजीद टेक्निकल बनाया जा सकता है. ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए चले हो गया. ऑप्शन बी R ओवर R1 2 ओवर 3. ऑप्शन सी 3R 2R1. ऑप्शन डी it can be written as capital R by 2 R1 by 3. So many options can be given to you. तो ये इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे. और इसके अलावा 12.8 एक्सरसाइज को आपने अच्छे से देखना है. 12.8 एक्सरसाइज में मैक्सिमम चांस होता है इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने का. तो आपने जो 12.8 एक्सरसाइज है उसको अच्छे से देखना है स्टूडेंट. एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.